السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار الحق، پیش خدمت ہے ہیڈ لائنز۔ یوم عاشوراء ٹریفک شیڈول جاری، دوپہر 12 تا رات 10 بجے تک ٹریفک پابندیاں عائد، عوام سے تعاون کی اپیل۔ امریکہ میں تعلیم کے لیے حیدرآبادی طالب علم کو 1.30 کروڑ کی اسکالرشپ، 12 اگست کو امریکہ روانگی۔ ورنگل میں آج 42 مراکز پر SI کے امتحانات منعقد، دفعہ 144 نافذ، 19,992 امیدواروں کی شرکت۔ تلنگانہ کے وزیر دیاکر راؤ کے بھائی TRS سے مستعفی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کی گورننگ کونسل کی صدارت، وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ کی عدم شرکت۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے پرانے شہر میں بی بی علم کے جلوس کی وجہ سے منگل کے دن ٹریفک پر قابو پانے کے لیے ہدایت جاری کی ہیں۔ بی بی کے علاوہ دبیر پورے سے مسجد الہی چادر گھاٹ کے درمیان جلوس کے راستے پر دوپہر 12 بجے سے رات 10 بجے تک ٹریفک کی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ یہ جلوس بی بی کا علاوہ شیخ فیضان کمان یا خودپورہ روڈ، اعتبار چوک کے علاوہ علیجہ کوٹلہ، چار مینار، گلزار ہاؤس، پنجے شاہ، میر چوک پولیس اسٹیشن، میر عالم منڈی، دارالشفا میدان، عزاخانہ زہرہ، کالی خبر سے ہوتا ہوا مسجد الہی چادر گھاٹ کے قریب اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے نکلنے والی سڑکوں پر گاڑیوں کو چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹریفک حکام نے عوام سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ حیدرآباد کے ایک 18 سالہ طالب علم ویدانت آنندواڑے کو امریکہ میں کیس ویسٹرن ریزرو یونیورسٹی بیچلر ڈگری تعلیم حاصل کرنے کے لیے 1.30 کروڑ کی اسکالرشپ فراہم کرے گی۔ اس سلسلے میں یونیورسٹی نے رضامندی کا مکتوب اور اسکالرشپ کا مکتوب بھیجا ہے۔ ویدانت، جنہوں نے شہر حیدرآباد کے علاقے گچی پولی کے ایک پرائیویٹ اسکول میں ICSE کی تکمیل کی، امریکہ کے نیو یارک میں نیورو سائنس کی تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ انہیں جیکبرٹی گلوبل نامی ادارے نے اس خصوص میں رہنمائی کی، جو قومی خیراتی ادارہ ہے۔ ویدانت اس ماہ کی 12 تاریخ کو امریکہ روانہ ہوں گے۔ اس موقع پر طالب علم نے کہا کہ یونیورسٹی طب میں دنیا میں 16ویں نمبر پر ہے اور اس نے 17 نوبل انعام یافتہ افراد پیدا کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ایسی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے اسکالرشپ ملی ہے۔ ویدانت نے کہا کہ ان کے والد ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ڈینٹسٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں اور ماں فزیوتھراپسٹ ہیں۔ ورنگل پولیس کمشنر ڈاکٹر ترون جوشی نے کہا کہ اتوار کو ورنگل پولیس کمشنریٹ کے تحت منعقدہ تلنگانہ ریاستی سطح کے سب انسپکٹر تقررات کے ابتدائی امتحان میں کل 21,550 امیدواروں کے مقابلے میں 19,992 امیدواروں نے شرکت کی ہے۔ ورنگل ضلع سے 9,223 امیدواروں نے امتحان میں شرکت کی، جبکہ ضلع ہنمکنڈا میں 8,699 امیدوار شامل رہے۔ جنگاؤں ضلع میں امتحان لکھنے میں امیدواروں کی تعداد 2,080 ہے۔ CP نے بتایا کہ 21,550 کو ہال ٹکٹ جاری کیے گئے تھے۔ 1,158 امتحان میں شریک ہونے سے قاصر رہے۔ امتحان 42 مراکز پر منعقد ہوا۔ احتیاطی اقدامات کے طور پر دفعہ 144 نافذ کی گئی تھی۔ تلنگانہ کے ریاستی وزیر دیاکر راؤ کے بھائی
ई प्रदीप राव ने कल वरंगल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने टीआरएस पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। 2018 के असेंबली इंतखाबात में वो वरंगल इससे मुकाबले के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद वो एमएलसी के ओहदे के मुंतज़िर थे, ताहम पार्टी ने इन्हें यह भी मौका फराहम नहीं किया, तब से वो नाराज़ थे। आज उन्होंने टीआरएस पार्टी छोड़ देने का ऐलान किया है। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल के 7वें अजलास की सदारत की। इस अजलास में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल, मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी व दीगर रियासतों के वज़राए आला और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के मुंतज़िमीन ने शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इस मीटिंग में शिरकत नहीं की। इस इजलास में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थमन बेरी और मरकज़ी वज़ीरा राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारामन और जयशंकर भी मौजूद थे। मीटिंग में अगले साल मुल्क में होने वाले G2 इजलास की तंजीम और रियासतों के किरदार पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसका मकसद मरकज़ और रियासतों के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के दरमियान वफाकियत के जज्बे के साथ माहौल पैदा करना, अमृत उत्सव के दौर में मुल्क की तरक्की के सफ़र में दरपेश चैलेंजों की निशानदेही करना और उनका हल तलाश करना वगैरह शामिल था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे ने आज जगदीप धनखड़ के नायब सदर मुंतखब होने के सर्टिफिकेट पर दस्तखत किए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दस्तखतशुदा कापी फिर मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी को सौंपी गई। इलेक्शन कमीशन ने इतवार को एक सर्टिफिकेट जारी किया, जिसमें एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को हिंदुस्तान के 14वें नायब सदर के तौर पर मुंतखब करने का ऐलान किया गया। सर्टिफिकेट की एक दस्तखतशुदा कापी सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर धर्मेंद्र शर्मा और इलेक्शन कमीशन के सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरेंद्र एन बटोलिया ने मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी को सौंपी। पोल पैनल ने कहा कि दस्तखतशुदा कापी 11 अगस्त को नए नायब सदर की तकरीब हलफबर्दारी के वक्त पढ़कर सुनाई जाएगी। मौजूदा एम वेंकैया नायडू की मियाद 10 अगस्त को ख़त्म हो रही है। मिस्टर धनखड़ ने 74.36% के भारी वोट शेयर के साथ कामयाबी हासिल की, जो पिछले 6 नायब सदर के इंतखाबात में सबसे ज़्यादा है। तेलंगाना कांग्रेस के साबिक लीडर श्रवण की अपनी हामियों के साथ बीजेपी में शमूलियत। तेलंगाना कांग्रेस के साबिक लीडर डॉक्टर श्रवण बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली में पार्टी के रियासती उमूर के इंचार्ज तरुण चुग की मौजूदगी में अपनी हामियों के साथ बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। तरुण चुग ने डॉक्टर श्रवण को पार्टी की रुकनियत दी। मरकज़ी वजीर किशन रेड्डी और विवेक वेंकटस्वामी ने श्रवण को पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में इस्तकबाल किया। विवेक वेंकटस्वामी, एमपी लक्ष्मण और मुरलीधर राव बीजेपी नेशनल वर्किंग कमेटी के अरकान ने इस तकरीब में शिरकत की। तरुण चुग ने कहा कि आज बहुत खुशी का दिन है। तेलंगाना में सीनियर लीडर श्रवण ने इनके साथ इनके कुछ हामी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना में बीजेपी की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, रियासत भर की आवाम तक पहुंचाएंगे। इन्होंने पार्टी में मधु करने पर तरुण चुग, किशन रेड्डी, विवेक वेंकैया स्वामी, मुरलीधर राव और लक्ष्मण का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो ज़माने तालिब इल्मी ही से एबीवीपी में काम कर चुके थे। इन्होंने मजीद कहा कि केसीआर ने रियासत के 60,000 करोड़ के कर्ज को 3 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है। मजीद ये भी कहा कि रियासत में आबपाशी का एक भी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ है। 30,000 करोड़ के कालीश्वरम प्रोजेक्ट को बढ़ाकर 1,15,000 करोड़ कर दिया गया है।
हिंदुस्तानी शतरंज के लीजेंड विश्वनाथन आनंद 2022 खेलों की आलमी गवर्निंग बॉडी FIDE के नायब सदर और आर्काडी डोरकोच सदर मुंतखब। हिंदुस्तानी शतरंज के लीजेंड विश्वनाथन आनंद 2022 आलमी खेलों की गवर्निंग बॉडी FIDE के नायब सदर मुंतखब हुए, जबकि मौजूदा सदर आर्काडी डोरकोच दूसरी मुद्दत के लिए दोबारा मुंतखब हुए। आर्काडी 5वीं मरतबा आलमी चैंपियन आनंद डोरकोविच की टीम का हिस्सा थे। डोरकोविच ने 157 वोट हासिल किए, जबकि इनके हरीफ एंडी बारिश पोलिट ने 16 वोट हासिल किए, जबकि गलत वोटों की तादाद 1 थी और गैर हाजिरीन की तादाद 5 थी। विश्वनाथ शतरंज की आलमी तंजीम के इंतखाबात FIDE कांग्रेस के दौरान होने वाले 44वें शतरंज ओलंपिया के साथ मुनक़िद हो रहे हैं। विश्वनाथ एक शानदार कैरियर रखने के बावजूद भी इन्होंने मुतादिद टाइटल और एजाज़ात हासिल किए हैं। चेन्नई में मुकीम आनंद ने हालिया दिनों में अपने टूर्नामेंट के खेल को कम कर दिया है और कोचिंग पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ कर दी है। इन्होंने नौइमरी ही से शोहरत हासिल की और आलमी जूनियर टाइटल जीतने के बाद हिंदुस्तान के पहले ग्रैंड मास्टर बन गए और तभी से शतरंज में आलमी सतह पर मुल्क की क़ियादत कर रहे हैं। विश्वनाथ 5 आलमी टाइटल जीतने का रिकॉर्ड भी रखते हैं। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक बेहतरीन मिसाल कुर्ला से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मुस्लिम नौजवानों ने पेश की। मल्लापुरम केरला से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मुस्लिम तलबा बासित और जाबिर ने ऑनलाइन रामायण क्विज़ मुकाबला जीतकर सबको हैरान कर दिया है। मुकाबले का इनेकाद मारूफ पब्लिशर कंपनी DC बुक्स ने ऑनलाइन किया था। दोनों शुमाली केरला ज़िले के विलांचेरी में KS इस्लामिक एंड आर्ट्स कॉलेज के तालिब इल्म हैं। तलबा का कहना था कि वह बचपन से ही इस महाकवि के बारे में जानते हैं। उन्होंने वानी कोर्स में शामिल होने के बाद रामायण और हिंदू मत के बारे में गहराई से पढ़ना शुरू किया, जिसके निसाब में तमाम बड़े मज़ाहब की तालीमात हैं। हिंदुस्तान की पहले छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-2 और एक शरीक मुसाफिर सैटेलाइट आज़ादी सेट के साथ इतवार को यहाँ सतीश धवन खलाई मरकज़ SDSC से उड़ान भरी। अली सुबह 2:18 शुरू हुई। उल्टी गिनती के साथ 7 घंटे बाद सुबह 9:18 पर SLV ने SDSC शार रेंज से कामयाबी के साथ उड़ान भरी। इस मौके पर इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सोमनाथ, इसरो के साबिक चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन और मिस्टर के सेवन और मिशन कंट्रोल सेंटर के साइंसदान मौजूद थे। जैसे ही रॉकेट ने उड़ान भरी, नारंगी रंग के धुएं का एक गुबार आसमान पर उड़ता हुआ नजर आया और ऐसा लगा जैसे इसने ज़मीन को हिला कर रख दिया हो। SSLV 34 मीटर लंबा है, जो PSLV से तकरीबन 10 मीटर कम है। PSLV के 2.8 मीटर के मुकाबले इसका कतर 2 मीटर है। SSLV का लिफ्ट ऑफ मास 120 टन है, जबकि PSLV का वज़न 320 टन है, जो 1.800 किलोग्राम तक आलात ले जा सकता है। सऊदी हुकूमत कुछ अरसे से ख़वातीन को तमाम शोबों में शामिल कर रही है। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के ख़याल के साथ आगे बढ़ने वाली सऊदी अरब की हुकूमत ने हाल ही में एक अहम फ़ैसला किया है, जिसके तहत सऊदी ख़वातीन को तेज़ रफ्तार ट्रेनें चलाने का मौका फ़राहम किया जाएगा। इस काम के लिए मुल्क भर से 31 ख़वातीन को तरबियत के लिए मुंतखब किया गया और इन ख़वातीन ने पहले मरहले की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है। इस तरबियती प्रोग्राम के लिए तकरीबन 28,000 ख़वातीन ने दरख्वास्त दी थी। इनमें से 145 को शख्सी इंटरव्यू के बाद मुंतखब किया गया। बादज़ा इन 145 अफराद में से सिर्फ 31 ख़वातीन को पहले मरहले की ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने हाल ही में अपनी तरबियत का पहला मरहला मुकम्मल किया है। जल्द ही वो ट्रेनिंग के दूसरे मरहले में जाएंगी। दूसरे मरहले में 5 माह की ट्रेनिंग
پیشہ ور ڈرائیوروں کی موجودگی میں عملی تربیت مکمل کریں گی۔ حکام نے بتایا کہ تربیت کا آخری مرحلہ مکمل ہونے کے بعد منتخب خواتین 1 سال کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان بلٹ ٹرین چلائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5 سالوں میں کئی شعبوں میں خواتین کی شرکت بڑھ کر 33% تک پہنچ گئی ہے۔ غزہ پٹی پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ ان حملوں میں فلسطین اسلامک جہاد گروپ سے تعلق رکھنے والے لیڈروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اب تک کل 28 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ان میں PIJ کے 2 اہم لیڈروں خالد منصور اور تیسری جباری بھی شامل ہیں۔ ان حملوں میں 6 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ جمعہ سے اب تک غزہ پر اسرائیل پر 400 سے زائد راکٹ اور مارٹر گولے داغے جا چکے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے انکشاف کیا کہ یہ کارروائی PIG کی جانب سے شدید خطرے کی وجہ سے کی گئی۔ اسرائیلی فوج نے یہ کارروائی بریکنگ ڈاؤن کے نام پر کی۔ یہ 1 ہفتے سے زیادہ جاری رہنے کی توقع ہے۔ ہفتے کے روز آپریشن میں رفح میں PIJ کے سینئر رہنما خالد منصور کے گھر کو تباہ کر دیا گیا۔ ماضی میں خالد اسرائیلی فورسز کی طرف سے انہیں مارنے کی 5 کوششوں کے بعد وہ فرار ہو گئے تھے۔ تازہ ترین حملے میں وہ اسرائیلی فورسز کے ساتھ جاں بحق ہو گئے۔ ادے اومنی ہاسپٹل نامپلی نے آج ایمبولینس ڈرائیوروں اور تکنیکی ماہرین کے لیے بیسک لائف سپورٹ BLS پر ایک ہینڈ آن ورکشاپ کا انعقاد عمل میں آیا۔ یہ ورکشاپ انڈین آرتھوپیڈک ایسوسی ایشن IOA کے تعاون سے کیا گیا۔ اس کا افتتاح ڈاکٹر راگھوا دت ملوکوٹلا، ڈائریکٹر اور چیف آف اسپائن سرجری، ادے اومنی ہاسپٹلز نے کیا۔ ورکشاپ کا مقصد عام لوگوں کو جان بچانے کے لیے بروقت اقدامات کے مختلف گر بتانا تھا۔